Morning students. Today our topic is decision making in subject of principle of business management. डिसीजन मेकिंग रिलेटेड बच्चे एक कोट एक लाइन बहुत फेमस है, व्हेन टू मच टाइम इज टेकन अ करेक्ट डिसीजन इट हैज़ टू बी रिमेंबर दैट ईवन अ करेक्ट डिसीजन इज रॉन्ग। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟਰਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਟਰਮਸ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਰੈਕਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕੈਨ ਮੇਕ ਔਰ ਮਾਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। अगर करैक्ट डिसीजन लिया है तो बिजनेस सक्सैसफुल हो सकता है, अगर तुसी रॉन्ग डिसीजन ले लेंदे हो तो बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है, बिजनेस नुकसान दे विच जा सकता है। सो जदों असीं करैक्ट डिसीजन लैंदे आ तो डिसीजन के हमेशा कॉन्सीक्वेंसिस जरूर होंदे हैं। एवरी डिसीजन हैज़ इट्स ऑन कॉन्सीक्वेंसिस। वो कॉन्सीक्वेंसिस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। ठीक है कि ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तुहाडे कोल दो ऑप्शन सी दैट जॉब ए और जॉब बी, ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਏ ਵੀ ਆਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜੋਬ ਬੀ ਵੀ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਏ ਆਪਟ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ, ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਰਹੋਗੇ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਤੋਂ। ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਏ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਂਗ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਟਿਲ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਗਰੈਟ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਟ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦੇ कॉन्सीक्वेंसिस जरूर होंगे ने, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नैगेटिव भी हो सकते हैं। सो आप अपना टॉपिक कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के बच्चे एक टर्म्स आ जाती है, कोई भी जो मैनेजर है वो सक्सैसफुल तां ही मन्निया जाएगा इफ दैट परसन हैज़ गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। अगर वो जी डिसीजनस लैन की जी स्किल्स है वो बहुत अच्छी है, सही टाइम के उत्ते सही डिसीजन लैंदा है। तो एवरी डे दैट मैनेजर हैव टू टेक द डिसीजन इट उन्हें की काम करना है की नहीं करना, वो उन्होंने डेली नंबर ऑफ डिसीजन लेने पैंदे हैं। किस परसन की टास्क लेना है, किस परसन तो की काम करवाना है, ठीक है, उन्हें खुद की काम करना है, बिजनेस के लिए किहड़ी चीज़ अच्छी है किहड़ी बुरी है, ठीक है। नंबर ऑफ डिसीजनस ने जिहड़े परसन मैनेजर नूं अपनी रूटीन लाइफ दे विच डेली लेने पैंदे ने। सो डिसीजन की हुंदा है, डिसीजन इज द सिलेक्शन फ्रॉम नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। when you have number of alternatives, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ alternatives ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, that choice is known as decision making। ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, decision making ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ decision ਮੇਜਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। decision ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਮੋਲ ਟਾਸਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਹੀ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਜਰ ਮਾਈਨਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਉਹਦਾ ਜੋ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਮਸ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ। ਤਾਂ ऑर्गेनाइजेशन जी है वो सक्सैस कि डिपेंड करती है, करैक्ट और राइट डिसीजन के उत्ते, ठीक है। जो तुसी बिजनेस स्टार्ट करना उदों भी तुसी डिसीजन लैंदे हो कि असीं ये बिजनेस स्टार्ट करना है, ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। जो बिजनेस वाइंड अप करना है वो भी असीं खुद डिसीजन लैंदे कि नहीं हुण असीं अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, शट डाउन करते पे हैं, ठीक है। सो मैनेजर का जिहड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन की है, डिसीजन मेकिंग हुंदा है। तो डिसीजन मेकिंग की है, चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव अंडर। डिसीजन मेकिंग की हुंदा है कि जदों तुसी ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਚੋਇਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਰਜ ਟੈਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਔਨ
सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फ्रॉम 2 और मोर पॉसिबल ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਟ ਚੋਇਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਆਰ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਇਜ਼ ਫੀਚਰਸ फीचर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग ਇਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜਾਂ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਜਾਂ ਮੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਫॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ फॉर एग्जांपल ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਪਟॉप ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੈਪਟॉप ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਪਟॉप ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਲੈਪਟॉप्स ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੈਪਟॉप ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਪਟॉप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਫੀਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ठीक है ये एक सिलेक्शन दी जाती है कि अगर तुसी उन्हें विच चूज करना है एक चीज़ ये नोट डाउन करियो कि ये की होंगे कि अगर किसी भी प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है तो उत्थे डिसीजन की रिक्वायरमेंट लोड़ ही नहीं पैंदी नीड ही नहीं है क्यों क्योंकि उसका सोल्यूशन एक है तुसी की चूज करोगे ठीक है तो अगर किसी प्रॉब्लम का सिर्फ एक सोल्यूशन है उस केस दे विच देयर विल बी नो डिसीजन तो उस तो बाद की है सैकेंड ਇਹਦਾ फीचर क्या डिसीजन मेकिंग इज़ अ मीडियम एक मोड है एक तरीका है ठीक है एंड नॉट द एंड अप ऑफ इटसेल्फ ये ਉਹਦਾ सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का जिमें कि कंपनी है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन ਦੇ ਵਿੱਚ स्ट्राइक चल रही है ठीक है तो वो स्ट्राइक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ खत्म करना है ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਬਟ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ किस बेस से लै रहे हैं प्रॉब्लम ਨੂੰ सॉल्व करने वास्ते ठीक है या कंपनी के जोड़े गोल्स है उसनों अचीव करने वास्ते तो यदा मेन टारगेट की है कि परपस यदा देखा जाता है कि डिसीजन किस परपस वास्ते लिया जाता है नैक्सट की है कि जो डिसीजन मेकिंग है ये जोड़े इवैल्यूएशन ऑफ वेरीअस ऑल्टरनेटिव साढ़े कोल n नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव ने उन्होंने असी बेस्ट चूज करना है तो उसके लिए असी इवैल्यूएट करांगे कि केड़ा ऑल्टरनेटिव बेस्ट है नैक्सट इज़ जो डिसीजन मेकिंग है कॉन्टीन्यूअस प्रोसैस है ये जजमेंट ये नहीं है कि फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू टिल द वाइंड अप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक ही है लगातार सानू नंबर ऑफ डिसीजनस लेने पैंदे है तो डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लैवल के उत्ते रिक्वायर है टॉप मैनेजमेंट अपने लैवल के डिसीजनस लैंदी है मिडल मैनेजमेंट के अपने डिसीजन होंगे हैं तो जी लोअर मैनेजमेंट है वो अपने बेसिस के जो उन्होंने टास्क है उस अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है तो डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लैवल के उत्ते पैंदी है उस तो बाद की है कि जो डिसीजन मेकिंग है एक रैशनल थिंकिंग है नंबर ऑफ पीपल हैव नंबर ऑफ सोल्यूशनस ठीक है मैं अगर कोई चीज़ मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आती है मैं मे भी उसनों डिफरेंट वे ना सॉल्व करा मैं ये डिसीजन लवां भी इदा करिए तो सॉल्व हो सकती है कोई होर परसन उस प्रॉब्लम ना डिफरेंट वे ना डील करेगा तो ये की है डिसीजन मेकिंग रैशनल थिंकिंग के उत्ते बेस करती है क्लीयर दीज आर दी करैक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग नाउ आर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रोसैस ऑफ डिसीजन मेकिंग ये स्टैप्स ने 7 स्टैप्स ने किस तरीके ना कोई डिसीजन लिया जाता या डिसीजन इंप्लीमेंट किया जाता है सो आर फर्स्ट स्टैप इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम सब तो पहला साडा फर्स्ट स्टैप की असी करैक्ट प्रॉब्लम देखनी है प्रॉब्लम की होंगी है प्रेजेंट और एक्सपैक्टेड जो स्टेट है या पोजीशन है उस दे विच जिहड़ा गैप होंदा है ठीक है असी एक्सपैक्ट किया साडी टर्नओवर है वो 1000 यूनिट होएगी मंथली बट एक्चुअल दे विच कितनी हुई है 800 यूनिट्स तो जो 200 है असी एक्सपैक्ट किया 1000 प्रेजेंट सिचुएशन की है 800 द गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड
एक्सपैक्टेड जी स्टेट है वो जो गैप है यानी 200 यूनिट्स घट ने तो ये साडी की है एक तरीके की प्रॉब्लम। तो सब तो पहला असीं की करांगे डिफाइन करांगे साडी प्रॉब्लम की है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस तरीके नाल नहीं है कि कोई प्रॉब्लम नाल दी नाल असीं डायगनोज की नाल दी नाल पता किया तो नाल दी नाल सोल्यूशन हो गया या नाल दी नाल डिसीजन लिया गया, नहीं। सब तो पहला प्रॉब्लम डिफाइन की जाती है कि प्रॉब्लम हुई क्यों है। पहला देखांगे फर्स्ट स्टैप की है कि पहला प्रॉब्लम की हो डिफाइन की सानू प्रॉब्लम की आई 200 यूनिट्स घट मैन्युफैक्चर्स हुई ने साडी जी असी जो एस्टीमेटेड जो साडा टारगेट सीगा उसके अकॉर्डिंग साडियां जिहड़ियां यूनिट्स ने वो 200 घट यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुई ने। हुण सैकेंड क्या आएगा डायगनोज द प्रॉब्लम। डायगनोज द प्रॉब्लम दे विच क्या होएगा, डायगनोज मीनस स्टडी द प्रॉब्लम इन डेप्थ। जी साडी प्रॉब्लम है उसनू डिटेल दे विच स्टडी करना कि ये प्रॉब्लम हुई क्यों, यानी 200 यूनिट्स साडियां जिहड़ियां घट मैन्युफैक्चर हुई दा रीजन की है। वर्कर स्ट्राइक्स ते हो सकते हैं, मशीनरी दे प्रॉब्लम हो सकती है, वेस्टेज ज़्यादा चल रही है, या साढ़े जो लेबर है वर्करस है वो की है स्किल नहीं है कि वो सही तरीके ना बना नहीं पा रहे। वर्किंग आवर्स दे विच की चीज़ है, वर्कर छुट्टी ते तो नहीं चल रहे थे, लॉकडाउन तो नहीं सी, एन नंबर ऑफ रीजन देयर वुड बी। तो उहदे विच असीं की करांगे डायगनोज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्यों हुई। नैक्सट इज कलैक्टिंग द इंफॉर्मेशन। पहला तो असीं की देखिया साडी प्रॉब्लम है 200 यूनिट्स घट मैन्युफैक्चर है। सैकेंड असीं रीजनस देखे, प्रॉब्लम नूं डायगनोज किया भी डिटेल च देखिया भी की रीजनस ने। उस तो बाद असीं इंफॉर्मेशन कलैक्ट करांगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन कलैक्ट करांगे भी हाँ जी साडे कोल ये प्रॉब्लम नूं सॉल्व करन दे की ऑल्टरनेटिव्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल असीं एन नंबर ऑफ रीजनस देखे जिहदे करके सानूं प्रॉब्लम आई है। हुण ये प्रॉब्लम नूं असीं देखांगे सॉल्व किवें करना। फॉर एग्जाम्पल जिहड़े वर्करस ने वो वर्करस की कर रहे हैं, छुट्टी लै रहे हैं बार बार। साडे वर्करस प्रॉपरली जो वर्किंग आवर्स ने उस अकॉर्डिंग काम नहीं चल रहा, तो वो अकॉर्डिंग की हो गया असी इंफॉर्मेशन की कलैक्ट की। नैक्सट इज डिवेलपिंग ऑल्टरनेटिव्स। डिवेलपिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन दे विच की आएगा कि जी प्रॉब्लम है उन्होंने बहुत नंबर ऑफ वेज है जिहदे अकॉर्डिंग असीं इहनूं सॉल्व कर सकते हैं। जिवें कि किस तरीके नाल जिहड़े वर्करस है उन्होंने जो वर्किंग इन्वायरमेंट है दैट शुड बी हैल्दी, वो हैल्दी होना चाहिए। मीनस अगर ये नहीं है कि उन्होंने विच ब्रेक नहीं है या जो उन्होंने छुट्टी चाहिए है वो छुट्टी नहीं है, लीव्स घट ने, ठीक है, किसी की प्रॉब्लम चल रही है, और इन्वायरमेंट उन्होंने प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग असीं की करांगे ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन देखांगे कि ये रीजन है। फॉर एग्जाम्पल जो इंप्लॉय वर्करस की कह रहे हैं सानूं जो इन्वायरमेंट है वो हैल्दी नहीं मिल रहा। हैल्दी इन द सेंस कि सानूं विच ब्रेक की रिक्वायरमेंट सी, लगातार काम नहीं हो पा रहा, या साडी हैल्थ इशू है, या असीं डॉक्टर्स कोल जाना है। ठीक है, नंबर ऑफ असीं देखांगे डिवेलपिंग कोर्स ऑफ एक्शन। उस तो बाद की करांगे असीं जिहड़े ऑल्टरनेटिव सानूं पता लग गए कि ऑल्टरनेटिव्स ने, हुण असीं वो ऑल्टरनेटिव्स नूं इवैल्यूएट करांगे कि साडे लई किहड़ा बेस्ट है। असीं उन्हां दा टाइमिंग फिक्स किया वर्कर्स का कि 9 to 5 तुहाडी जॉब है, उहदे विच की कीतियां 2 ब्रेक्स दे दित्तियां कि इस टाइम पीरियड दे विच तुसीं ब्रेक लै सकदे हो, या असीं उन्हां दी प्रॉब्लम्स नूं सुनांगे, मीटिंग लवांगे, प्रॉब्लम्स नूं सुनांगे कि जिस वे नाल उन्हां नूं की है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तुसीं लीव क्यों लै रहे हो। ठीक है, कईयां नूं मैडिकल लीव्स की रिक्वायरमेंट होंदी है, तो उस अकॉर्डिंग देखा कि इनकेस तुसीं छुट्टी ते हो तो तुहाडा कोई ऑल्टरनेटिव है जिहड़ा कि काम कर सकदा है, या तुसीं छुट्टी दे तुहाडे बेस दे उत्ते ये जिहड़ी जॉब है ये टास्क कौन परफॉर्म करेगा। असीं की कीता कोर्स ऑफ एक्शन जिहड़े डिवेलप कीते, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शनस नूं उन्हां नूं डिवेलप कीता। उस तो बाद असीं की करांगे इवैल्यूएशन द ऑल्टरनेटिव्स। बेस्ट ऑल्टरनेटिव असीं इवैल्यूएट करांगे कि अगर असीं ए ऑप्शन चूज़ किया इहदे नाल सानूं की कॉन्सीक्वेंसिस की रिजल्ट आएंगे, बी ऑप्शन ऑल्टरनेटिव चूज़ करते हैं की कॉन्सीक्वेंसिस ने, सी ऑप्शन चूज़ करते की कॉन्सीक्वेंसिस ने। कुछ दे फेवरेबल कॉन्सीक्वेंसिस पता लग जाते हैं, कुछ दे जिहड़े आपां पहलां कर चुके हैं पॉजिटिव नैगेटिव, हर एक डिसीजन के कॉन्सीक्वेंसिस होंदे है। 100% आपां कोई गारंटी नहीं लै सकते कि ये डिसीजन लिया तो इसका रिजल्ट जिहड़ा है पॉजिटिव ही आएगा या फ्रूटफुल होएगा। पॉजिटिव नैगेटिव दोनों ही पॉइंट्स प्रोबेबिलिटी इज़ ऑलवेज देयर। फिर असीं उन्हां विचों कोई एक ऑल्टरनेटिव चूज़ करांगे। ठीक है, वो जिहड़ा ऑल्टरनेटिव है दैट वुड बी डिपेंड अपॉन द पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस दे उत्ते जिहड़ा मैनेजर है, जिवें आपां टर्म कीते रैशनल थिंकिंग, हर एक परसन का प्रॉब्लम नूं सॉल्व करन दा डिफरेंट वे हो सकता है। तो उहदे विच की है वो पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देखणगे कि ये चूज़ करिए, ये अगर डिसीजन लै लैने असीं ऑल्टरनेटिव चूज़ कर लैने सानूं फायदा हो सकता है, उसनूं असीं ऑल्टरनेटिव नूं चूज़ करांगे। उस तो बाद चूज़ करन तो बाद हुण असीं की करांगे इंप्लीमेंट करांगे कि वर्कर्स नूं कह दित्ता ठीक है असीं तुहाडे ये प्रॉब्लम सीगी, इस दे अकॉर्डिंग असीं ये पॉलिसी बनाई है, तुसीं इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही काम करना है।
ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਸੀ ਕੀ होगी इंप्लीमेंट होगी। लास्ट अपना पॉइंट की है फॉलोइंग अप। फिर असी ਜਿਹੜੇ कंसर्नड पोर्सनस ने, कंसर्न पोर्सन कौन ने, वर्कर्स, उन्होंने ਨਾਲ कम्यूनीकेट करते रहेंगे कि हाँ जी असी ये रूल फॉलो किया या ये पॉलिसी बनाई सी, ये अकॉर्डिंग ਤੁਹਾਨੂੰ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। उसके अकॉर्डिंग असी नैक्सट मंथ चैकआउट करांगे साडी ਜਿਹੜੀ आउटकम है, जो साडी असी देखिया सी कि साडी एक्सपैक्टेशन सी 1000 यूनिट सी, ਉਹ ਅਸੀਂ कवर अप कर रहे हैं, अचीव हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। These are the process of decision making।